Hello students, today we will start a new topic, that is clocks. In a clock we know that there are two hands, hour hand and minute hand. Obviously there is third hand is also there, that is seconds hand. Okay. Now look at here, the hour hand. Suppose in a watch right now it is 12 o'clock. Okay. If this hour hand take a complete rotation, how much hour it will be cover? It will cover 12 hours and make an angle of, कितना एंगल कंप्लीट कवर होता है इसमें सर्कल में 360 डिग्री. इट मीन्स आर एंड जो है आपके 12 आवर्स के अंदर 360 डिग्री एंगल क्रिएट करता है. एंड व्हाट अबाउट द 1 आवर? इट विल मेक 360 डिग्री अपॉन 12. इट मीन्स इन 1 आवर it will make 30 degree angle. How much angle it will make in 1 minute? We know that in 1 hour there is 60 minutes. So hour and make in 60 minutes 30 degree angle. It means in 1 minute it will make 30 upon 60. It means 1 upon 2 degree. This is the angle made by hour hand. Okay. In 1 hour and in 1 minute. Now talk about the minute hand. Look at here. Minute hand, suppose I'm starting with 12 o'clock. Minute hand is here. It will take a complete rotation. How much time it will take? Taken by minute hand? 1 hour. In a 1 hour, minute hand will make 360 degree angle. And in 1 hour 360 degree angle, it means in 60 minutes it will make 360 degree angle. It means in 1 minute it will make 360 upon 60. That is about 6 degree. Okay. It means in each minute the minute hand travel in 6 degrees and the hour hand will be travel half an degree. Okay. And what is the total angle between both of them? It means how much angle, if they both are starting with the 12 o'clock, then what is the angle after 1 minute? After each 1 minute they will make about 5.5 degree angle. It means I can say that the minute hand is traveling faster than hour hand. Look at here. Minute hand travel in 1 minute 6 degree. Hour hand will be travel in 1 minute in half an degree. Okay. It means obviously minute hand is traveling with more speed than hour hand. And what is the difference of their speed? Is 6 degree minus half degree. It means 5 and 1 upon half degree. In each minute the minute hand will be travel 5.5 degree more than the hour hand. Okay. This is the angle made by minute hand more than the hour hand. Okay students, I'm telling you all the concept point by point. The second concept, come to the third concept. Now tell me that how much time the minute hand and hour hand will be coincide to each other. It means how much time the minute hand and hour hand will be meet and coincide.
look at here. Suppose at the starting I'm at 1 o'clock. I'm at 1 o'clock, it means like this. At the starting I'm at 1 o'clock. What happened? This hand will be start moving, and both the hand will be start moving like this, and after some time when it is here between 1 and 2, the minute hand and hour hand, between 1 and 2, or after the slight distance of 1, the minute hand and hour hand will be meet. After that again the minute hand will be start traveling and it will reach to 12. It means in 1 hour, look at here, at the starting the minute hand is here and hour hand is here. After some time it means about at 1 and 5, not exactly 5, suppose at 6 minutes, both the hands will be meet. Okay, now it means in 1 hour. आफ्टर दैट जब ये एक बार मिल जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद जब आगे रन करना स्टार्ट करेगा, तो जब तक ये 2 o'clock पे पहुँचेगा हार एंड, हमारा मिनट हैंड वापस 12 पे पहुँच जाएगा. इट मीन्स बिटवीन 1 and 2 हमारा हार एंड मिनट हैंड कब कितने टाइम्स मिला? सिर्फ सिंगल टाइम. आपकी दोनों जो हैंड्स हैं वॉच के सिर्फ एक ही बार कॉन्साइड करते हैं या मीट करते हैं, या मैं ये कह सकती हूँ 0 डिग्री का एंगल बनाते हैं. कितनी टाइम? इन 1 hour ओनली वंस. ओके, इट मीन्स एट द 12 hour it will meet in 12 times and 24 times, obviously 24 times. बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है. ये 12 hour में 12 times नहीं मीट करता है. अब ऐसा क्यों नहीं होता है? लुक एट हियर. Suppose right now I'm at 11 o'clock. Okay. What happened here? When it is 11 o'clock, the minute hand will be start moving like this. Hour hand will be move like this. Okay. Hour hand स्टेप से मूव करेगी और मिनट हैंड आपकी स्टेप के मूव करेगी. कब दोनों एक दूसरे पे मीट करेंगे? जब एग्जैक्टली 12 o'clock होंगे. राइट, जब तभी मीट करेंगे ना. उससे पहले तो 11 बज के किसी मिनट में ये मीट करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर था और यहाँ पर था. आर एन को यहाँ से यहाँ तक पहुँची और तब तक मिनट हैंड हमारा पूरा टर्न करके 12 पे पहुँच जाएगा. यानी दोनों एग्जैक्टली 12 o'clock पे मीट करेंगे. बट आफ्टर 12 o'clock, अभी 12 o'clock हो रहे हैं. आफ्टर 12 o'clock वापस मिनट हैंड ऐसे मूव करना स्टार्ट करेगा. अभी तो मीट ही किए हुए, थोड़ा सा एंगल ये बनाएगा 1 मिनट में, हाफ डिग्री ये 6 डिग्री जितने मूव कर जाएगा. एंड धीरे धीरे ये वापस टर्न करके आपके यहाँ पर आएगा 12 o'clock. जब क्या बजेगा? 1 o'clock पर. एट 1 o'clock ये आपके वापस 12 पे आ गया. इट मीन्स 12 और 1 के बीच में आपका मिनट हैंड और हार हैंड कभी मिला ही नहीं. 11 एंड 12 के बीच में भी ये देखो ईच आर के बीच में 1 टाइम मिल रहा है. इट मीन्स यहाँ पे 1 टाइम मिलेगा, यहाँ पे 2 टाइम्स, ये 2 टाइम हो गया, ये 3 टाइम्स, 4 टाइम, इसके बीच में 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9, 10 टाइम. यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर इन पूरे 2 घंटों के बीच में, इन 2 पूरे आवर्स के बीच में ये सिर्फ 1 से मिल रहा है, वो भी 12 o'clock.
11 to 12 और 12 to 1 के बीच में, ये सिर्फ वंस मिल रहा है एट 12 o'clock। इट मीन्स आपके 12 आवर्स में दोनों ये जो हैंड्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ 11 टाइम्स मीट करते हैं, एंड दस 24 आवर्स में दे विल मीट 22 टाइम्स। I thought it is clear to you, students? Now, how many times right angles will be there between both the hands? Okay. Suppose right now it is 1 o'clock. The minute hand will be start moving like this. Obviously our hand will be also start moving like this at about 1:20. At about when it is about 1:20, I'm talking about 1:20 because obviously it will not exactly about 1:20 because अगर आपका मिनट हैंड मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली आर एंड भी उस टाइम कुछ ना कुछ एंगल मूव करता है। एट अबाउट 1:20 द बोथ द हैंड विल बी मीट टू ईच अदर। आफ्टर दैट दिस मिनट हैंड विल बी स्टार्ट मूविंग अगेन एंड वेट इट विल बी अबाउट नियर it is about when it is going to be 2 o'clock, or right now if I will talk about the one, it is about 2 o'clock. Then when it is here between 10 and 11, okay, between 10 and 11, if I am talk about exactly कि मैं यही लेट करती हूँ कि मेरा वन हैंड ये आर एंड मूव ही नहीं हुआ है तो 1:20 पे मिलेगा, ऑब्वियसली मुझे मालूम है। 1:20 भी मिलेगा once, and second time when it will be at 10 इस टाइम, ओके। बट ऑब्वियसली दोनों मूव करते हैं तो एट अबाउट 1:50 ये दोनों अगेन मीट करेंगे, सॉरी ये दोनों हैंड्स अगेन 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगे, ओके। नाउ लुक एट हियर, इट मीन्स इन 1 आवर द बोथ द हैंड्स विल मेक 90 डिग्री एंगल 2 टाइम्स, okay। It means similarly it will make in 12 hours it will make 24 times, but actually it will not make 24 times make 90 degree angle. Why it will not? Let us see. Suppose it is 2 o'clock right now, okay, it is right now 2 o'clock. It means the minute hand will be start moving, okay, like this, and at 2:25 it will make an angle 90 degree, okay. After 2:25 what will happen here? When it will be reach about at, well, what will happen here? Look at here, when it is here right now at 2 o'clock, minute hand will be start moving like this, and when it is about 2:25, not exactly 2:25, even more, इससे ज़्यादा ही होगा, 27 28 तक भी हो सकता है ये, ओके। तब ये अबाउट ये बनाएगा 90 डिग्री एंगल, और जब ये वापस यहाँ पर आएगा तब क्या होगा? अबाउट हमारे 3 o'clock बजने वाले होंगे, तो ये हमारा
आर एंड क्या होगा, 3 o'clock पे पहुंच जाएगा. इट मीन्स ये 12 पे पहुंच जाएगा. एट 3 एंड एट जब ये हमारा अबाउट 11 के आसपास पहुंचेगा तो ये आर वाली सुई क्या होगी, अप्रॉक्स 3 पे पहुंच चुकी होगी. इट मीन्स एग्जैक्टली 3 बज जाएगा. यानी 2:25 के बाद डायरेक्टली एट 3 o'clock आपके 90 डिग्री एंगल बनेगा. जबकि 2 से 3 के बीच में 2 टाइम बनना चाहिए था, वो 1 टाइम ही बना. फिर ये हमारा 3 o'clock हो गया. अब 3 o'clock के बाद वापस कहाँ बनेगा, एट अबाउट 3:30, 3 और कुछ ऐसा, बिकॉज ये भी थोड़ा सा मूव करेगा. तो अबाउट आपके 3:33 पे एंगल बनेगा. ओके, 3:33 के बाद में अगेन 3 पे ऊपर तो बन ही चुका था. इसको क्रॉस करने के बाद ये आपके यहाँ बना, बिकॉज हम यहाँ देख रहे हैं इस आर एंड के एक बार लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ बन रहा है और एक बार लेफ्ट की तरफ बन रहा है 90 डिग्री एंगल. तो 2 o'clock के आपके लेफ्ट में नहीं बन पाया, सिर्फ राइट में ही बन पाया. 3 o'clock के लेफ्ट में बन गया और राइट में भी हो गया. अब उसके बाद में क्या होगा, ये वॉच मूव करती रहेगी और हम पहुंच जाएंगे 4 o'clock पे. क्या होगा, 3 o'clock से 3:35 पे यहाँ थी. उसके बाद ये वॉच, ये हमारा हैंड एज इट इज मूव करता रहेगा, हम पहुंच जाएंगे 4 o'clock पे. ओके, 4 o'clock से 5 o'clock के बीच अगेन वही आपके यहाँ पे मीट करेगा, ये अबाउट 4:10 पर और उसके बाद एट अबाउट 4:35 पे. यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑब्वियसली 2 टाइम मीट कर रहा है. 1 to 2 के बीच में हमने देखा ऑब्वियसली 2 टाइम्स मीट कर रहा था. यानी प्रॉब्लम कहाँ है सर, प्रॉब्लम आई जब 2 से 4 के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग. जब 2 से 4 के बीच में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये हमारा सिर्फ 3 टाइम्स ही मिला था, जबकि मिलना कितने टाइम चाहिए था, 4 टाइम. यहाँ देखो, यहाँ 2 टाइम मिलेगा, 2 टाइम 4, 1 2, ये 3 4 5 6. यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं. 7 8, इन 8 आवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी. ईच आवर में 2 टाइम मिलेगा, बट इन 2 आवर्स के बीच में ये सिर्फ 3 टाइम से मिलता है. ऐसे ही इन 3 आवर्स के बीच में, 2 आवर्स के बीच में 8 to 10 के बीच ये 3 टाइम्स ही मिलेगा. इट मीन्स 12 आवर्स में जहाँ इसको मिलना चाहिए था 24 टाइम, तो यहाँ एक और कम मिल रहा है और यहाँ एक और कम मिल रहा है. इट मीन्स 2 टाइम कम हो गया, तो ये 22 टाइम्स ही 90 डिग्री एंगल बनाएगा. ओके, एंड 24 आवर्स में इट विल मेक 44 times 90 degree angle. Is it clear, students? Just remember this. In 1 hour, it will make 2 times 90 degree angle. Okay? Now we will talk about how many times both the hands will be opposite to each other. We have taken a case when both the hands coincide to each other, meeting to each other and making 0 degree angle. It will make 90 degree angle in this way. And now we will talk how much time it will make 180 degree angle. Now we will talk how many times both the hands will make 180 degree angle. It means both the hands are in a line but in the opposite direction. Look at here. Suppose it is 1 o'clock right now. What will happen here? The minute hand will be start moving like this. First it will be coincide on the at 1:05, and after that it will make angle 90 degree and so on. After at about 1:40, because it will also move and the R hand will be between 1 and 2. Let us suppose that minute hand is not moving. Okay, let us suppose minute hand is
sorry, our hand is not moving. It means at about 135. If our hand is not moving, then it will make 180 degree angle at 135. But since our hand is also moving, so it will make 180 degree angle when the minute hand is in between 7 to 8 at about 1:38:39. suppose it is making 180 डिग्री. ओके, अबाउट सपोज करो यहाँ पे हमारे 180 डिग्री एंगल बना रहा है. आफ्टर दैट इसके बाद वापस चला जाएगा, इसके बीच में यहाँ तक पहुँच जाएगा, 2 o'clock हो जाएगा, तब तक वापस दोबारा 180 डिग्री एंगल नहीं बनेगा. इट मीन्स 1 hour में ओनली वंस. ठीक है. नाउ टॉक अबाउट द कंप्लीट 12 hours. व्हाट विल बी हैपन? Okay. When it is at 5 o'clock, look at here. When it's 5 o'clock, this hand is also started moving, and this also. यहाँ तक आकर कॉन्सिलाइंस होंगे, एक दूसरे पे कॉन्साइड होंगे, और यहाँ पर इसका 90 डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ 90 डिग्री एंगल मिलेगा, और यहाँ वापस जाके जब मेरी यहाँ पर पहुँचने वाला होगा, सब देखो मिनट हैंड जब मेरे यहाँ पहुँचने वाला होगा, तो आर एंड मेरा कहाँ पहुँच जाएगा? 6 पर. इट मीन्स एग्जैक्टली मेरे वॉच में क्या बज जाएगा? 6 o'clock हो जाएगा, जब मेरी दोनों हैंड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी या 180 डिग्री एंगल में होंगे. क्या हो जाएगा? 6 o'clock. आफ्टर 6 o'clock जब 7 के पास आ रही हूँ मैं, तो लुक एट हियर, ये आर एंड इस तरह से मूव हुआ. अभी एक दूसरे को अपोजिट है, इसने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया. ऑब्वियसली कहीं 1 मिनट में यहाँ पर तो हाफ एन डिग्री एंगल किया, इसने यहाँ पे 60 डिग्री एंगल कर लिया, तो ऑब्वियसली कहीं पे ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे. इस टाइप से ये मूव करना स्टार्ट करेगा. ये मेरा 6 to 7 हो जाएगा, और ये मेरा यहाँ से मूव करके पूरा कंप्लीट 7 o'clock पे आ जाएगा. बिकॉज 7 बच के यहाँ पे 1 पर अप्रॉक्स ये ऐसे अपोजिट होगा, राइट. तो यहाँ पर तो 6 पे तो 1 पे और ये ऐसे अपोजिट बन नहीं पाएगा. तो क्या होगा, ये यहाँ पर जब तक 7 बजेगा तब तक ये वापस 12 पे आ चुका होगा, और 6 और 7 के बीच में और 5 और 6 के बीच में ये सिर्फ एक ही बार एक दूसरे को अपोजिट होता है एट 6 o'clock. इट मीन्स आपके 5 to 7 के बीच में जहाँ इसे 2 times मीट करना चाहिए ना, 180 डिग्री एंगल बनाना चाहिए था, ये सिर्फ वंस ही 180 डिग्री एंगल बना रहा है. तो दैट्स वाई 12 hours में इट विल मेक 11 times, and in 22 hours it will make 180 degree angle. Sorry, in 24 hours 22 times 180 degree angle will be there between both the hands. Okay students, now we will talk about the relative speed of both the hands. Look at here, this is a watch. Okay. Suppose right now it is 12 o'clock. Okay. और जब हम 1 o'clock पर आएंगे, at 1 o'clock तो देखो हमारा मिनट हैंड ने कितना ट्रैवल किया. इन 1 hour मेरी मिनट हैंड ने ट्रैवल किया 60 मिनट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द आर हैंड, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितनी मिनट जितना डिस्टेंस कवर किया?
जो कि मिनट हैंड 5 मिनट में कर लेता उतना ही डिस्टेंस कवर किया. ओके, इन 1 आवर मिनट हैंड कवर्ड 60 मिनट एंड कवर्ड 5 मिनट्स. इट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ टोटल 60 मिनट में, टोटल जो 1 आवर था उसमें अबाउट टोटल 55 मिनट्स मिनट हैंड ने ज़्यादा ट्रैवल किया. आवर हैंड तो सिर्फ 5 मिनट ट्रैवल कर रहा है इन 1 आवर एंड मिनट हैंड आपकी 60 मिनट ट्रैवल कर रहा है. इट मीन्स मिनट हैंड आपकी ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है. और कितना ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, कितना ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, 55 मिनट ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है आपके मिनट हैंड. ओके, इट मीन्स मिनट हैंड गेन्स 55 मिनट, 55 मिनट ज़्यादा ट्रैवल करेगा. कितनी देर में, 60 मिनट्स में. आपका जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट के अंदर 55 मिनट ज़्यादा ट्रैवल करेगा हैंड आवर से. इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एंड दिस all are the basic of this chapter and all will be very useful while we will solve the question related to this. We will continue with the question in the next video. Thank you class.